Hi guys, I hope I'm audible to everyone. So this is basically an interactive session for all II May 2025, August 2025 and November 2025 planners. Basically, we are going to discuss roadmap ahead. So we have some students who are appearing for May 2025, some who have already given February exams and are now confused basically with respect to the next attempt. So we have mix of students, so some have not even joined, matlab they have basically requested for the video recording. So guys, if you are filling the form, do make sure that you are available at that particular slot, because what we do is we give you slots based on the request that we receive. So we have divided the entire group into multiple slots, so we just request you to be available as per that slot, because recording is not possible. We don't share the recording of the Zoom sessions because these are interactive sessions only. So now, before I start discussing with respect to the questions that I have received from this particular batch recording, basically I want to understand from you guys ki what are your doubts. You can put your doubts in the chat section and I can discuss that. Any general things that you want to discuss with me before I start discussing? Feel free to put it in the chat section. Be quick, guys. It has to be an interactive session, so you guys need to speak. So let me discuss the questions basically that I have received, because no one is speaking. So guys, what's the point of attending the session when you don't want to speak? These sessions are for you guys only. हम लोग टेक्निकल डिस्कशंस के लिए ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही हैं. इन सेशंस का मतलब ही यही है बेसिकली, ओवर एंड अबव इफ यू वांट टू डिस्कस योर डाउट्स, बिकॉज एट द एंड टीम के पास तो बहुत सारे मैसेजेस दिन में आते रहते हैं. सो वी थॉट कि वी विल कम लाइव एंड विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू. Okay, so Kriti is asking procedure and instructions to attempt the exam. Bhavya is asking, I am doing CM1 and CB2. How can I proceed now? What should be the strategy? So Bhavya, you are appearing for CM1 and CB2 for your May attempt, right? Mention your attempt as well. So Bhavya, mention your attempt. Okay, so CM1 and CB2 for the May attempt. See, I would like to understand how much portion have you covered till date? You can unmute your mic as well, Bhavya, and speak. How much portion have you covered till date of CM1 and CB2? Good morning, ma'am. Yes, good morning. Ma'am, for CB2, I have done the content lectures till chapter number 17. Okay, and what about CM1? For CM1, ma'am, I am at par till cause of college exams also going on. Okay, okay. And you have decided that you are appearing for both the exams, right? Yes, So what ma'am. I would advise you is, see, you need to buck up with your preparations. कब तक है college के exams? मैम कॉलेज के एग्जाम जस्ट खत्म ही हुए हैं. Okay, okay. That means you can continue with your preparations now, being done with college exams. So एक तरीके से we have March, April and 10 मई का जो टाइम है उसको छोड़ देते हैं. हमारे पास 2 months है प्रिपरेशन के लिए. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना कंटेंट रैप अप करो. सो फॉर इंडिया स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर थरो विद आर कंटेंट, वी आर रैपिंग अप विद आर कंटेंट. मैं अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, वी आर रेगुलरली सेंडिंग यू Q&A सीरीज वीडियोज, जिसमें ना जो भी स्टूडेंट कुछ भी पूछता है ना, वी मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट एवरीवन गेट्स बेनिफिट ऑन दैट. So there is one video that is going to be out as well कि how basically to prepare for the MCQs pattern, जिसमें मैंने specially mention किया है कि it's very important that we are preparing for the content, because there are students who always ask me कि अगर हम MCQ दे रहे हैं तो हमें कंटेंट इतना इतना करने की जरूरत क्या है, हमें ये सब याद रखने की जरूरत क्या है, आप डायरेक्टली एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करवाओ ना. तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में मूव करने के लिए बिल्कुल भी आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी. आप अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखो. जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने CB2 का भी चैप्टर 17 तक किया, ट्राई टू रैप अप ऑल योर लेक्चर्स ऑफ CB2, ट्राई टू रैप अप ऑल योर लेक्चर्स ऑफ CM1.
और अगर आपको लगता है कि कंटेंट करने के बाद मेरे से क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो नहीं होएगा, बिकॉज नाउ अ डेज दे आर मेकिंग एमसीक्यूज वेरी डिफिकल्ट। और आपको तो पता ही है दैट फॉर CB2 दे हैव चेंज द पासिंग परसेंटेज ऑल्सो टू 65। सो इट्स नाउ डिफिकल्ट टू गेट द स्कोर। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर द रिमेनिंग टाइम इज, एक तो अपना कंटेंट खत्म करो। कंटेंट खत्म करने के बाद अगर आप CM1 के पास पेपर्स उठाते हो, तो CM1 में तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, चाहे हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज रेलिवेंट फॉर यू, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ट्राई टू डू द क्वेश्चन। और जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस प्रैक्टिस में आप लोग अपने स्टेप्स वगैरह पे फोकस नहीं करोगे। इंडिया वालों के लिए यही सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हम लोग अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन समझने के बाद मुझे उसका फाइनल ऑप्शन समझना है। तो मुझे बीच में जो मैं स्टेप्स कर रही हूँ, जैसे मर्जी स्टेप्स करो, स्टेप्स लिखो ना लिखो, कैलकुलेटर में करो, वो आप लोगों की कॉल है कि आपको कैसे उस क्वेश्चन को मैनेज करना है। एट द एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जैसे IFOA वाले स्टूडेंट्स को ना हम क्या एडवाइस करते हैं कि अगर आप लोगों का फाइनल आंसर नहीं भी मैच करा, लेकिन आपके स्टेप्स अगर मैच कर रहे हैं, तो यू कैन गेट मार्क्स ऑन दैट। बट इंडिया वालों के लिए क्या एडवाइस है, बिल्कुल डिफरेंट एडवाइस हो जाती है इंडिया वालों के लिए, कि अगर आप लोगों के स्टेप्स ठीक है, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर फिर भी मैच नहीं हो रहा, तो वहां पर आप लोगों को मार्क्स लूज करने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑप्शन ही चूज करना है। तो जब आप पास पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर हम CM1 की बात करें, इतने सारे लेक्चर्स हैं हमारे पास CM1 के पास पेपर्स में। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पहले मेन कंटेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स, आप पहले ये अंडरस्टैंड करो कि मुझे किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है। और ये समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप असाइनमेंट्स उठाओ, टेस्ट उठाओ, एंड सी हाउ यू आर डूइंग इन दोज असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। एंड जिस भी चैप्टर्स में आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है, उसके पास पेपर्स लेक्चर्स उठाओ और उनको वॉच करो। तो CM1 के सारे पास पेपर्स लेक्चर्स ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बट इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि कौन से चैप्टर्स में आपको दिक्कत हो रही है। मैं तो आपको बोलूंगी सारे पास पेपर्स लेक्चर्स को गो थ्रू करो, मे बी एट 1.5x 2x, क्योंकि आपको इतने ज्यादा स्टेप्स समझने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, रफ में करो, और अल्टीमेटली उसका सिर्फ ऑप्शन मैच करो। अब आते हैं हम CB2 के अंदर। CB2 में हाउ यू हैव टू प्रोसीड इज, अगेन वी हैव लॉट ऑफ पास पेपर्स लेक्चर्स, और हम कुछ कुछ सेग्रीगेट भी करे हमने, जिसमें 5 मार्कर्स डिस्कस हो रहे हैं, किसी में MCQs डिस्कस हो रहे हैं, किसी में माइक्रो के MCQs है, किसी में मैक्रो के MCQs है, किसी में लॉन्ग स्टाइल क्वेश्चंस हैं। तो अब कैसे इसको प्रिपेयर करना है, देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है CB1 और CB2 स्टूडेंट्स का, कि जो आप 5 मार्कर्स करवा रहे हो, क्या हमें वो देखने की जरूरत है? बिल्कुल देखने की जरूरत है। आपको देखना सब कुछ है, मतलब इवन इफ आई एम डूइंग 5 मार्कर क्वेश्चन, इवन इफ आई एम डूइंग से 10 मार्कर क्वेश्चन, 20 मार्कर क्वेश्चन, यू स्टिल हैव टू वॉच दैट लेक्चर। रीजन बीइंग, मैंने उस वीडियो में भी ये समझाया है, रीजन बीइंग कि यू डोंट नो कि कौन सा पर्टिकुलर लाइन वो चूज कर ले और उसके बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले। तो हम हर चीज याद नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन अगर हमने हर चीज देखी होगी तो हमें पता होएगा कि हाँ, दिस वाज समथिंग दैट वाज डिस्कस्ड एट दैट टाइम, एंड आई हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। सो दिस इज द ओनली रीजन दैट व्हाई वी आर एडवाइसिंग इंडिया स्टूडेंट्स कि यस, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि जैसे मैं वीडियो में हमेशा, लेक्चर में हमेशा आप लोगों को टाइम देती हूँ, क्योंकि इफ इट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, यू हैव 5 मिनट्स टाइम टू फ्रेम द पॉइंट्स। आप मत फ्रेम करो पॉइंट्स को, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो पॉइंट्स की डिस्कशन हो रही है ना, वो जरूर सुननी है, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज नॉट द बिल्डिंग अप ऑफ पॉइंट्स, नॉट द मेकिंग ऑफ पॉइंट्स, बट येस द पॉइंट्स डिस्कशन। तो आप 2x पे वॉच करो CB2 के पास पेपर्स लेक्चर्स, और एकदम से डायरेक्ट MCQ वाले पास पेपर्स में मत आना, पहले अपना कंटेंट और सफिशिएंट पास पेपर्स लेक्चर्स वॉच करने के बाद फिर लास्ट में आप MCQ वाले क्वेश्चन उठाना। देखो MCQ कोई इतना स्ट्रगल नहीं है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है, अगर हमें समझ में सब कुछ आया हुआ है, अगर हमारी स्ट्रैटेजी ठीक है, वी कैन इजिली अटेम्प्ट MCQs। लेकिन वो सब करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गिविंग आवर 100%, एंड फॉर यू टू गिव योर 100%, फर्स्ट यू नीड टू वॉच एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द पोर्टल। और अभी लाइक फॉर इंडिया स्टूडेंट्स वी विल हैव लॉट ऑफ अदर सेशंस एज वेल। जैसे अगर मैं अभी CB2 की बात करूँ, तो वी आर डूइंग कंटेंट इन लाइव सेशंस, और जैसे वो रैप अप होगा, जैसे हमने माइक्रो की MCQ सेशंस लिया, ऐसे ही मैक्रो के MCQs होंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट CB1, तो वी विल हैव MCQ सेशंस फॉर CB1 स्टूडेंट्स। नाउ अगर आपने वीडियो में भी लिया हुआ है तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज गेटिंग अपलोडेड ऑन द पोर्टल, यू कैन जस्ट वॉच इट। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को
बताना चाहूंगी that since the videos are getting uploaded of all the live sessions that are taking place, do make sure that you're refreshing and you're checking on the downloaded content after every 10-15 days so that you're not missing on any of the new video that gets uploaded. Because बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, वो सिर्फ पहले वाला कंटेंट देखते रहते हैं, और जो न्यू वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पे मतलब अपलोड हो रही है, वीकली बेसिस पे जो अपलोड हो रही है, आप लोग उनको वॉच ही नहीं करते हो। तो जो डाउनलोडेड कंटेंट है उसको एक बार रिफ्रेश कर लिया करो सो दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन एनी ऑफ द अपडेटेड लेक्चर। सो भव्य, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? So another question is by Kriti, procedure and instructions to attempt the exam. So Kriti, which exam you are appearing for? Do mention your subject and your diet. You can unmute I'm as well and speak. preparing for CB2. CB2, ठीक है। तो CB2 का तो मैंने अभी जैसे आपको समझाया, सेम बिल्कुल वही रहेगा। एंड डू अपीयर फॉर योर टेस्ट एंड मॉक्स, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग ऑन एनी ऑफ द टेस्ट, एनी ऑफ द मॉक, एंड डू नॉट ओनली फोकस ऑन MCQs। एज आई एम टेलिंग, ईच एंड एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। एक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले कंटेंट, बिकॉज किसी भी चीज पे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो कंटेंट को बेसिकली अगर आपको दोबारा से भी देखना है, अगर आपको लग रहा है लेट्स से मेरा मैक्रो वाला पोर्शन अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं न्यूमेरिक नेशनल इनकम की चीजें भूल रही हूँ, या एग्रीगेट डिमांड वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, कंटेंट को एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज करो। जो 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स हैं, उनके पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, सिर्फ उन पे फोकस करना है, पॉइंट्स बिल्डिंग पे फोकस नहीं करना। और फिर लास्ट में अपने MCQs पे फोकस करना। जो MCQs वाले लेक्चर है ना, मैं तो वो एडवाइस करूंगी आप लास्ट के सिर्फ एक हफ्ते में देखो, उससे पहले अपना बाकी का कंटेंट सारा स्ट्रॉन्ग कर। So this Okay. was one of the question that was raised by Kriti. Guys, what about others? Before I tell you the list of the questions that I have received, I would like to understand any questions from your side. So yes, Bhavya, you can fill. There is no particular date for II membership. आपको basically उनको contact करना है। अगर आप II की website पे contact us वाले section पे जाओगे ना, तो they've given you the list of the numbers to whom to contact. You can simply call them, they are available on call as well. So call करके आप उनको बोल दो कि मेरे को membership लेनी है, and they will give you on your email ID the details, and you just have to pay that 4,000 fees and you can take your membership. आप मेंबरशिप तो ले लो, बिकॉज फिर उसके बाद ही आप मटेरियल ऑर्डर कर पाओगे, और मटेरियल के बिना दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर द एग्जाम। Ma'am, what material are you talking about? जो मतलब आई आई का मटेरियल आपको परचेज करना पड़ता है ना, फ्रॉम आई इट इज कंपल्सरी टू परचेज मटेरियल। दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम IFOA, तो आपको वहां पर सिर्फ एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना होता है, उनका मटेरियल लेना कंपल्सरी नहीं है। इंडिया का क्या है, जो सेम मटेरियल होता है जो आई मतलब IFOA का ही मटेरियल है, इंडिया यूजेस दैट मटेरियल ओनली, बट इट इज कंपल्सरी टू परचेज स्टडी मटेरियल फ्रॉम आई बिफोर गिविंग देयर एग्जाम। अदरवाइज वो आपको एग्जाम रजिस्टर नहीं करने देता। so how can I purchase it? I mean I didn't know आपके about it. आपके अकाउंट में इफ यू हैव द मेंबरशिप ना, तो इट विल शो इन योर अकाउंट ओनली दैट यू कैन परचेज द मटेरियल। तो जस्ट अपने अकाउंट से ही जाकर आप मटेरियल परचेज कर सकते हो, एंड पोस्ट दैट यू कैन फिल योर एग्जाम। अभी तो रजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं हुआ है, बट जब भी ओपन होगा उसके बाद आप एग्जाम फिल कर सकते हो, या फिर आप Okay. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज अभी तो ऐसा आपको कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यू कैन परचेज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज वेल। Is that material like important or कुछ it is वो compulsory to डिफरेंट नहीं purchase, है, but दैट्स I द have सेम दैट्स द सेम कोर रीडिंग दैट यू मस्ट हैव रिसीव फॉर CB2। तो CB2 का जो 2024 का या 2023 का या जो भी मटेरियल आपके पास है, वही सेम कोर रीडिंग आपको इशू होती है। इट्स जस्ट दैट फॉर इंडिया, इन ऑर्डर टू गिव एग्जाम्स, यू फर्स्ट नीड टू परचेज दैट मटेरियल। okay. Guys, any other question that you would like to discuss before I start discussing the questions that I have received in this particular batch comment section? Anything that you want to discuss? So I have received lot of questions from the students who had filled this form. So let me just go through the questions.
Okay, so as per the students who are available, let me share the questions of the students who are available right now. So Mansi is asking how to proceed part B and how to target the questions as 30% is minimum mark. So 30% मानसी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बेसिक ही है. अगर आप CS1A या CS1B का एग्जाम अपियर कर रहे हो और CS1B में अगर वो आपसे 30% एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस इज not too much. They are not expecting 30 marks from you. They basically 30% I mean I would say कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया आपसे. अब 30% का मतलब ये है कि हाँ, यू नीड टू परफॉर्म गुड. अगर वहां से आपके 30 आ रहे हैं और वहां से भी आपके 50 मार्क्स भी आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली 70-30 की रेशियो अप्लाई होएगी बेसिकली. तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू अचीव. इन फैक्ट मैं आपको ये बोलूंगी कि CS1 CS2 CM1 CM2 के लिए एज सच कुछ चेंज है ही नहीं, बिकॉज 30% तो हम वैसे भी स्टूडेंट्स है मिनिमम जो बी पार्ट के लिए अपियर कर रहा है, इतना तो उसका आना ही चाहिए. नाउ यू सिंपली, और पार्ट बी के लिए आपको ऐसा कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि आपको वहां पर आर के क्वेश्चन होंगे और आर का कोड अप्लाई करना है. इट्स जस्ट कि जितने भी पास पेपर्स, आई थिंक मोस्टली पास पेपर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स, जितने भी बस पास पेपर्स हैं उनसे आप स्ट्रॉन्ग रखो और CS1A को इग्नोर मत करो. देर आर सम स्टूडेंट्स हु फील कि मतलब बी पार्ट में ऑब्लिगेशन है हमारा 30% की, तो हम सिर्फ बी पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं और ए पार्ट तो MCQ ही है, वो तो हो ही जाएगा. मतलब इस चीज को आप बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लेना कि ए पार्ट तो हो ही जाएगा, कि वो तो MCQ है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट दे आर टारगेटिंग नाउ अ डेज इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, फेब्रवरी वाला अटेम्प्ट भी जो हुआ, जो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो यही फीडबैक है कि मतलब इट्स नॉट इजी टू अटेम्प्ट MCQ क्वेश्चंस. सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस थिंग इन द माइंड दैट एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. एंड आपके पास स्टेप मार्किंग के बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिल रहे. सो यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, और उसके लिए आपका ए पे कमांड होना बहुत जरूरी. जितना ए पे कमांड है, बी अगर बस आपको एप्लीकेशन आता है तो बी के लिए तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. ए की अगर कमांड अच्छी है तो बी की एप्लीकेशन अगर आती है तो यू कैन इजिली क्लियर एग्जाम. Now, one of the question that Kriti raised in session, talk session form was exam to take up next. ठीक है, तो कृति अभी CB2 आप अपियर कर रहे हो मई 2025 के लिए, तो विच ऑल एग्जाम्स आर यू डन विद, और बस इज दिस दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम? अच्छा अटेम्प्ट. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट एग्जाम है. अब मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप क्या कर सकते हो. यू कैन गो हेड विद CS1 एंड CB1 फॉर योर नवंबर 2025. मतलब देखो, अभी हमारे पास मई के बाद अगस्त 2025 का टाइम भी है, नवंबर 2025 का टाइम भी है. अगस्त की अभी डेट शीट आउट नहीं हुई है, बट उन्होंने सर्कुलर में मेंशन कर दिया था कि देयर विल बी 4 डाइट्स. तो फेब्रुवरी हो गया, मई हो गया, अगस्त हो गया, नवंबर हो गया. तो एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि मई के बाद आप अगस्त में एक छोटा पेपर CB1 दे दो. बट मैं आपको वो एडवाइस करने के बजाय मैं आपको ये बोलूंगी, आप CS1 और CB1 डायरेक्टली नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो. दैट्स योर बेस्ट कॉम्बिनेशन. प्लस विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग्स एज वेल, एवरीथिंग CS1 और CB1 आप आराम से मैनेज कर सकते हो. मैम बट द थिंग इज कि अभी मेरे एग्जाम्स कॉलेज के मई में खत्म हो जाएंगे, मतलब मई मिड में. उसके बाद मेरा ये वाला अटेम्प्ट है. उसके बाद मेरे पास जो जून जुलाई का फुल मंथ जो है वो फ्री है. हम्म. मतलब सेशन अभी नेक्स्ट अगस्त में स्टार्ट होगा, तो मेरे पास 2 महीने कम्प्लीटली फ्री हैं. तो मेरे को लग रहा था कि CM1, मैंने जिनसे भी सुना है वो बोलते हैं कि इसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए रहता है, मतलब बहुत वास्ट है ये. तो मेरे को लग रहा था कि मेरे पास 2 मंथ्स पूरे फ्री है, तो मेरे पास पूरा टाइम होगा कि मैं एक सब्जेक्ट को दे दूं. तो मैं सोच रही थी कि मैं अगस्त में CM1 में भी देखो, अटेम्प्ट कर कर लूं. सकते हो आप CM1 अगस्त में, अगर लगता है आपको कि यू कैन गिव 6 to 7 hours ऑन अ डेली बेसिस. अगर हम 2 मंथ्स की बात करें, सी डेफिनेटली CM1 इज अ वास्ट एग्जाम, और 2 मंथ्स में उसको प्रिपेयर करना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज CM1 और CM1 भी दोनों है. बट इफ यू फील कि यू कैन डू इट बिकॉज योर जून जुलाई इज कम्प्लीटली फ्री, एंड इफ यू कैन गिव 6 to 7 hours, गो हेड. और मे बी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप डिसीजन ले सकते हो कि वेदर टू गो फॉर अगस्त और नॉट. और अगर लगेगा कि नहीं अभी मेरे को थोड़ा सा और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अगस्त में फिल करने के बजाय यू कैन फिल इट फॉर नवंबर, और साथ में आप CB1 पिक कर लेना. यू कैन गो हेड लाइक दिस एज वेल. ओके.
ठीक है, okay. So Ritu is asking, I am an II student. I have covered till chapter competing risk. I'm in CT5 portion and covered summary list till chapter. So what should be my strategy for next few months? So Ritu, जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला, देखो आप लोगों के लिए all those who are appearing for May 2025 कॉमन स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले हमें अपना कंटेंट खत्म करना है। जितना भी आप लोगों का हुआ है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अपने कंटेंट को बनाओ। अभी के लिए से फॉर द नेक्स्ट 10-15 days, इफ यू वांट टू स्किप द पास्ट पेपर्स इट्स ओके। ऑल्दो टारगेट्स में पास्ट पेपर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक पहले कंटेंट नहीं स्ट्रांग होगा तब तक हम एमसीक्यूज के लिए रेडी नहीं होंगे। हम यूके वालों के लिए एडवाइस बिल्कुल डिफरेंट होती है कि उनको कंटेंट एक बार कर लिया, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, सो दैट स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे। इंडिया वालों के लिए अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाती है, बिकॉज आपको कंटेंट पहले अच्छे से करना है, सो दैट you can be you are able to answer each and every question that is tested in exam. So first try to wrap up your content, even if you have to watch twice or thrice the videos, just make sure you are ओके विद, जैसे आप कंपीटिंग रिस्क पे आ चुके हो, लेकिन आपको अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कोई क्वेश्चन दूं तो यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन, यू शुड बी रेडी विद दिस मच। उसके बाद जो आपके रिमेनिंग पास्ट पेपर्स लेक्चर्स बचे, जस्ट रैप अप दैट एंड कंप्लीट योर टेस्ट एंड मॉक्स। मतलब जो भी आप लोगों का चल रहा है, बस ये मेक श्योर करो आपकी टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गिविंग आवर टेस्ट, बिकॉज आप लोगों को एक रियल चेक मिलता है जब आप टेस्ट के लिए अपियर करते हो, ठीक है। और फीडबैक भी हम लोग एक दिन के अंदर ही आपके पास आ जाता है, सोल्यूशन भी अपलोड हो जाते हैं, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कंफर्टेबल हूँ या मैं इन चैप्टर्स में कंफर्टेबल नहीं हूँ। या मान लो 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का टेस्ट था, मेरे सिर्फ 30 आए हैं, ठीक है, तो अब मेरे जो 20 नंबर लूज करे हैं मैंने, वो मैंने कौन से क्वेश्चंस में लूज करे हैं, उनमें मुझे कैसे फोकस करने की जरूरत है। क्या मेरे को उस टाइम उन क्वेश्चंस का कंटेंट नहीं आता, या फिर मुझे उन वो क्वेश्चंस में से पास्ट पेपर्स में अटेम्प्ट नहीं हो रहे। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हाँ मुझे अब अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है। तो स्ट्रैटेजी में डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, रितु। So another question, some of you did not fill the form as well. Another question was by Tanvi. So Tanvi says, is 2-3 months enough to prepare CB1 as I have my semester in between, or is good to start? Also, can I start preparation for CS1 in April after getting result? So Tanvi, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, देखो रिजल्ट का वेट करना तो हम एक्चुअल में बिल्कुल भी एडवाइस करते ही नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग रिजल्ट को लेकर बैठे रहे तो आधी डाइट्स वैसे ही खत्म हो जाती है। तो चाहे आप यूके के एग्जाम दे रहे हो चाहे आप इंडिया के एग्जाम दे रहे हो, हम लोग बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते कि आप रिजल्ट का वेट करो। आपको एग्जाम देने के बाद खुद से पता होता है कि एग्जाम कैसे गया, ठीक है। मतलब मोर और लेस हमें 70-80% रिजल्ट पहले से पता होता है, अनलेस एंड अनटिल किसी का बहुत ही बुरा एग्जाम हुआ हो तो हम बोल देते हैं कि आप सेम एग्जाम को रिपीट कर दो। मतलब अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे से 50 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, लेट्स सपोज आई एम जस्ट जनरली गिविंग यू एन एग्जाम्पल, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ या 60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, तो हम सीधा उस स्टूडेंट को एडवाइस कर देते हैं देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सिंपली री-attempt, I mean just consider this fact that you have to re-attempt the exam and just start preparing for the same exam again. लेकिन अगर आपको लगता है कि yes I have given the exam and I am bit confident in whatever I have done and in terms of options also I have मतलब आपका अगर फाइनल आंसर देखो करेक्ट आ रहा है और वही ऑप्शन अवेलेबल था, तो वैसे भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि yes मोर और लेस द ऑप्शन दैट आई हैव चूजन इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि yes whatever you have done is good enough, do not wait for results at all and start with CS1 and CB1 both। मतलब एक स्टार्ट नहीं करना है, आपको दोनों स्टार्ट करने हैं। आपके पास अगस्त तक का टाइम है, देखो अभी मार्च है, आप आराम से CS1 CB1 अगस्त तक प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू कैन गिव 4 to 5 months ऑन अ डेली बेसिस, 2 to 3 hours for CS1 and 1.5 to 2 hours for CB1 if you can manage on daily basis, go ahead with the August attempt। और अभी आप लोगों के पास तो ऑप्शन है ही ना, आप प्रिपेयर हमेशा इस अटेम्प्ट से करना चाहो कि आप मेरे को अगस्त में पेपर देना, और अगर नहीं हुआ उस टाइम पर प्रिपरेशन नहीं हुई, हम एग्जाम रजिस्टर नहीं करेंगे, वी विल फिल इट इन नवंबर। बट व्हाई टू वेस्ट आवर डाइट, व्हाई टू वेस्ट आवर time, and let's just be focused and try to clear as many exams as we can within this graduation time only. Charvi is asking, since I have Tanvi, I hope your doubt is resolved with respect to the subject planning. In case still कोई भी issue है, feel free to discuss with me.
So Charvi is asking, since I have my semester exams in May mid, is it a right option that I appear for CB1 in August? मई में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, तो मई तक सेमेस्टर एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएंगे। आपके पास जून जुलाई, आप आराम से अगस्त में CB1 अपियर कर सकते हो। अगर आपके पास 2 मंथ्स है और आपको CB1 के लिए प्रिपेयर करना है, 2 से ढाई घंटे दिन में डेली स्टार्ट कर दो देना, आराम से आप मैनेज कर सकते हो। बिकॉज एज आई एम टेलिंग, CB1 मुश्किल हुआ करता था, मतलब अभी भी बहुत मुश्किल है। रीजन बीइंग, CB1 में ना बुक वर्क नहीं आता। CB2 का एक एडवांटेज क्या रहता है हमारे पास कि चलो ठीक है, हमने डिमांड के बारे में कुछ पढ़ा, हमने सप्लाई के बारे में कुछ पढ़ा, या फिर हमने नेशनल इनकम का कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो अच्छा कॉन्सेप्ट अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो वी कैन चूज द ऑप्शन। CB1 में क्या है, इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट, इट्स योर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इट्स योर एप्लीकेशन स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू क्लियर एग्जाम। बिकॉज दी पहले भी जो MCQs आते थे बिफोर इवन दिस MCQ पैटर्न ना, चाहे आप इंडिया की बात करो चाहे यूके की बात करो, CB1 का हर एक MCQ इतना मुश्किल होता है। बिकॉज देर इज नॉट इवन अ सिंगल MCQ दैट हैज बीन रिपीटेड इन दीज ईयर्स। एवरी टाइम एवरी MCQ दैट दे आर टारगेटिंग इज डिफरेंट, be it IFO, be it IN, that is very much I mean say higher order thinking skill question. So we need to understand what question wants from us, and उसके लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन और थिंकिंग स्किल्स वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैंने CB1 या CB2 वाले स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस कर रही हूँ कि बिल्कुल भी आपको 5 मार्कर्स या 10 मार्कर्स, मतलब स्टूडेंट हमेशा ये बोलता है कि अब मुझे छोड़ना है। मैं आपको ये नहीं कह रही आपको छोड़ना है, आपको पॉइंट्स भी नहीं बनाने, मत बनाओ बेशक पॉइंट्स। आपने क्वेश्चन देखा, मैं आपको पॉइंट्स बनाने का टाइम देती हूँ, हाँ पॉइंट्स मत बनाओ, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के डिस्कशन पे आ जाओ। और बस जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए कि यस इट इज एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन विल चेंज फॉर 5 मार्कर्स एंड 10 मार्कर्स। So I hope, Charvi, this answers your question. तो मानसी का क्वेश्चन सेम था जो भी हुआ, ऋतु ने भी सेम क्वेश्चन है, भव्या का भी सेम है। Naina's question was how to use remaining time for preparation. So Naina, yes, as I'm telling कि आप लोगों की प्रिपरेशन का जो टाइम बचा है वो आप लोगों पे डिपेंडेंट है बेसिकली, कि आपका भी क्या हो चुका है। आप अगर ऐसा कुछ भी डाउट लगता है ना, सी वी कैन डिस्कस ऑन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, एंड यू कैन फील फ्री बेसिकली टू पुट इट ऑन इंस्टीट्यूट्स नंबर। व्हाट स्टूडेंट्स डू इज कि अगर कुछ भी डाउट लग रहा होता है ना कि हमें इस लेक्चर को वॉच करना चाहिए या इसको वॉच करना चाहिए, व्हाट दे डू इज दे कीप ऑन आस्किंग अस ऑन इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप। दे सिंपली message the team ki let's suppose I am done with the content lectures, I am yet to start with past papers lectures, so what do you advise? Should I revise content lectures first or should I watch past papers lectures? मतलब ऐसे जो छोटे छोटे से डाउट्स आते रहते हैं, you don't have to wait for any session or any discussion to go, because see if you have enrolled for the video program or anything, you might not be available for the live sessions as well, so simply you can ask the team for the same and they will reply. सो येस इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। आप देखो कि आपका अभी कितना हुआ है, किस हिसाब से आपका भी टाइम रहता है। अगर अभी कंटेंट ही नहीं हुआ तो एज आई एम एडवाइजिंग टू एवरीवन, फर्स्ट यू नीड टू रैप अप योर कंटेंट, देन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विच इज लेफ्ट वी हैव टू डू असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, देन इन दोज असाइनमेंट्स एंड टेस्ट आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच यू आर डूइंग मिस्टेक्स, and based on that watch your past papers lectures of the chapters which seem to be difficult for you. So this should be your approach. Ma'am, Yes. Ma'am, I have purchased self-study program. So, ma'am, अगर मेरे को छोटे मोटे डाउट्स किसी सेशन में आते हैं, so how can I resolve that? सेल्फ स्टडी में तो डाउट्स नहीं है, बस एक दो कुछ अगर डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे डाल दो, अदरवाइज तो ऐसा जिसमें डाउट्स होते नहीं है। बट अगर एक दो डाउट्स है तो जस्ट फील फ्री टू पुट इट ऑन इंस्टीट्यूट्स नंबर। Okay, thank you, ma'am. So guys, any other questions with respect to May 2025, August 2025 or November 2025 planning? Any question that is coming to your mind, feel free to discuss that. Don't keep things to your heart. The more you speak, the more you highlight your things, the better we will be able to resolve it. So if there are no questions, then that's it for the day from my side. And as I told you, कुछ भी preparation के respect में आपको confusion होती है तो don't keep it to yourself. मतलब on a daily basis our WhatsApp is just flooded with these preparation messages only. That's why on every regular interval we are coming live, so that basically
वी आर हेयर फॉर ऑल योर हेल्प। सो मेंबरशिप से रिलेटेड मानसी, जो भी डाउट्स है आप टीम को डालो ना, मतलब हाउ टू रिन्यू योर मेंबरशिप, रिन्यूअल, मेंबरशिप का रिन्यूअल कोई प्रोसीजर थोड़ी ना है। आपके प्रोफाइल के अंदर ही वहां पर ऑप्शन आता है कि रिन्यूअल मेंबरशिप, आपको वहां पे बस जाकर पेमेंट करनी है, और आपकी मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी। सो ये जो मेंबरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टॉक सेशन में आने भी नहीं चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर जस्ट जनरल क्वेश्चंस फॉर विच द एंटायर टीम इज अवेलेबल। यहाँ पर टॉक सेशन में हम लोग आपकी सब्जेक्ट्स प्लानिंग, आपकी डाउट्स अंडरस्टैंडिंग और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और द मंथ्स दैट वी अवेलेबल, वी आर हियर फॉर दैट डिस्कशन। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ भी और डाउट्स रहते हैं जो कभी भी आपको आते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, फील फ्री टू पुट इट ऑन इंस्टीट्यूट्स नंबर। Okay, so Ritu is asking, I am struggling in CM1B, so please give some tips for this. So Ritu, सबसे पहले CM1B के लिए, I would just like to understand, have you completed all your past papers lectures of CM1B? एंड आर यू अटेंडिंग द लाइव सेशंस? तो आप बिल्कुल भी, फिर स्ट्रैटेजी आपकी ठीक नहीं है। CM1B में तो डाउट रहेगा ही रहेगा, CM1B में तो एंड टाइम तक भी डाउट रहेगा। अगर आप पास पेपर्स नहीं कर रहे हो तो मतलब एवरी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, और अभी एकदम मॉक स्टार्ट होएगा CM1B का, आप पैनिक हो जाओगे अगर आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो जो भी सर लाइव सेशंस में करवा रहे हैं आपको आना चाहिए। अगर लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट फर्स्ट जो इस बार की लाइव सेशन हुए हैं ना उनको वॉच करो। और उनको वॉच करने के लिए जो सर ने टारगेट्स दिए थे आपको कि अच्छा फॉर एग्जांपल CM1B की ये वाली क्लास और उससे पहले आपको ये लेक्चर बी का कंप्लीट करना है, एटलीस्ट वॉच दैट, देन ओनली यू वुड बी एबल टू गेट अ कमांड ऑन दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इन एक्सेल, because there are students who perform very good in say A part but they actually lose their exam because of non performance in B. So अभी ऑलरेडी मार्च हो चुका है और आपने अगर नहीं स्टार्ट किया है एक्सेल वाला पोर्शन तो यू रियली नीड टू बक अप विद योर प्रिपरेशन फॉर दैट फर्स्ट रैप अप लेक्चर्स। लेट्स सपोज वी हैव आई थिंक लॉट ऑफ लेक्चर्स फॉर CM1B। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास 10 लेक्चर है, मैं एग्जांपल देती हूँ, तो 10 लेक्चर में से पहले आप 5 लेक्चर सिर्फ ओरली देखो कि कैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आप उसको एक्सेल में इनपुट करते हो। फिर रेस्ट के 5 लेक्चर में जो भी क्वेश्चन सर ने डिस्कस करे उसको एक एक को, एक वीडियो अगर 2 घंटे की उसको 4 घंटे की बनाकर आप देखो और उसके साथ साथ अटेम्प्ट करो कि दिस इज हाउ आई हैव टू परफॉर्म, then only you would be able to get a command। लाइव सेशन जो चल रहे हैं पार्टिसिपेट इन दैट, मतलब जो भी लाइव सेशन में हो रहा है साथ साथ आपका होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट का एक्सेल उतना हो रहा है जितना आपका नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स डेफिनेटली लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सेल पे करना चाहोगे वो नहीं होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कमांड लेने के लिए कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सफिशिएंट लेक्चर्स को पहले वॉच करो, उसके बाद रिमेनिंग लेक्चर्स को 4 घंटे का बनाकर, 6 घंटे का बनाकर, पॉज दे देकर एक एक फंक्शन जो है एक्सेल का उसने करने के लिए बोला, जो भी स्टेप करने के लिए बोला है करो उसको, उसके बाद देखो अपने ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन चेंज हो जाएगी। सी रितु, एज सच देखो मिनिमम एग्जाम्स का ना कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन एंड एवरीथिंग, वी एडवाइज यू कि आप लोग अपनी कोर प्रिंसिपल सीरीज खत्म कर दो विद ग्रेजुएशन कि मतलब CS1 CS2 CM1 CM2 CV1 CV2 आपका खत्म हो जाए। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि दे नीड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज एज सुन एज दे आर डन विद ग्रेजुएशन, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CP1 as soon as they're done with their core principal series, and वो CP1 बेसिकली अपीयर करते जैसी उनकी जॉब लगती है ताकि इंक्रीमेंट भी मिस ना हो बड़े पेपर का, और CP1 प्रिपरेशन से इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले अपना बेसिक एग्जाम्स अपने सारे आपको ट्राई करना चाहिए कि खत्म हो, और उसके बाद भी अगर टाइम रिमेनिंग है तो प्रिपरेशन CP1 की आप स्टार्ट कर सकते हो, बट उसको आप दोगे तभी जब आपकी जॉब लग जाएगी। So at least try to clear 6 to 7 exams with your graduation. Okay, guys, then that's it for the day. Happy learning and all the best to every one of you.